Hello class 8th. Welcome to the Sun Public School. In previous class we have read chapter 1 and chapter 2. Now we are going to study chapter number 3, quadrilaterals. In today's class we are going to read the introduction of quadrilaterals. Let's start. How this chapter is useful in our daily life. We use polygon at every moment of our life. There are various examples of polygon in real life, from fruits to honeycomb to floor designing. Tiles are the perfect examples of polygon. They are squared or hexagonal shape and placed in such a way that they do not leave any space in the area, just like properties of angle of polygon. You can also see the polygon shaped signboards on the road. Football is also made by joining pieces of hexagonal shaped polygon, and again a perfect example of polygon. जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो आपकी फुटबॉल में होते हैं वो सब क्या होते हैं, हेक्सागोनल पॉइंट होते हैं. तो आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी इन शेप्स को इजी गोइंग में देख सकते हैं. Theory of the chapter. Polygons. These closed shapes are made of many sides. A closed shape made up of 3 or more than 3 sides is called a polygon. यानी कि 3 साइड से ज़्यादा कुछ साइड्स हों तो वो कौन सी शेप बनाते हैं, पॉलीगन बनाते हैं. The line segments are called its sides and the point of intersection of the consecutive sides are called its वर्टिकल्स. यानी कि जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं उनको साइड्स कहते हैं, और जहाँ पर इन साइड्स के पॉइंट इंटरसेक्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इसके वर्टिकल्स कहते हैं. एन एंगल formed by 2 consecutive sides of polygon inside the polygon is called an interior angle और angle of the polygon. यानी कि आपने जब ट्राइंगल देखा होगा तो उसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आप लोगों ने देखा है. तो उसके अंदर वो क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं. जैसे कि यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा आपका यहाँ पर इस पॉइंट पर अंदर की तरफ, वो क्या होगा, इंटीरियर एंगल होगा. इन अ पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स एंड अ पॉलीगन नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स और एंगल इट हैज़. यानी कि हम साइड्स के अकॉर्डिंग, उनके नंबर के अकॉर्डिंग उस पॉलीगन का नाम रख देते हैं. लेट्स सी इन दिस टेबल. नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 हुई तो आप उसको क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं. नंबर ऑफ साइड्स अगर 4 हुई तो आप उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. नंबर ऑफ 5 इज कॉल्ड पेंटागन. नंबर ऑफ साइड्स इज 6, देन वी कॉल इट हेक्सागन. नंबर ऑफ साइड्स is 7, we call it heptagon or septagon. If number of sides is equal to 8, then we named it octagon. Number of sides 9 is nonagon. Number of sides is 10 is decagon. In general, a polygon with n side is called n-sided polygon. The shaded region represent the interior of this quadrilateral. यानी कि ये जो शेडेड है ना, ये सब इसका क्या है, इंटीरियर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. द शेडेड रीजन हियर रिप्रेजेंट द एक्सटीरियर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. यानी कि अब ये जो है बाहर शेप, जो आपको ये शेडेड रीजन दिख रहा है, ये इसका क्या है, एक्सटीरियर पार्ट है ना. और ये जो शेडेड रीजन है वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सटीरियर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. सम इम्पॉर्टेंट definition. Some important definitions. Vertical of a polygon. Verticals are the end points of the line segments forming the sides of the polygon. जहाँ पर आपके पॉलीगन की दोनों साइड मिल रही है ना, वो उसके क्या हैं, वर्टिकल्स हैं. और यानी कि verticals are the end points of the line segment forming the side of the polygon. Adjacent verticals, the end points of the same side of the polygon are known as the adjacent verticals. वर्टिकल्स वो पॉइंट हैं, वर्टिकल वो पॉइंट है जहाँ पर दो लाइनें मिल रही हैं, ठीक है.
लेकिन एडजेसेंट वर्टिकल वो हैं जहाँ पर दो लाइनें एक ही पॉइंट से निकल रही है, दो लाइनें एक ही पॉइंट से इस तरीके से रेज निकलती है ना, तो ये जो पॉइंट है वो क्या है आपका एडजेसेंट वर्टिकल्स। इंटीरियर एंगल, द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगन दैट लाइज इनसाइड द पॉलीगन, the angle between two adjacent sides of a polygon that lies inside the polygon is known as interior angle of polygon. In the adjoining figure, angle A, angle B, angle C are the interior angles of triangle ABC. आपको जैसा मैंने बताया था ए बी सी क्या है, इसके इंटीरियर एंगल है क्योंकि ये अंदर की तरफ बने हुए हैं। एक्सटीरियर एंगल्स, व्हेन द साइड ऑफ अ पॉलीगन इज प्रोड्यूस्ड द एंगल which it makes with the next side is called the exterior angle of the polygon. In the adjoining figure, angle ACD is an exterior angle of ABC. ये तो आपका पूरा इंटीरियर पार्ट हो गया, लेकिन ये जो एक्सटीरियर जो ये एंगल जा रहा है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है आपका। तो कौन सा एंगल है, एंगल ACD है ना, एंगल ACD, और किसके लिए है, ट्राइंगल ABC के लिए। एडजेसेंट एंगल, two angles are said to be adjacent if they have a common vertex and a common side but do not overlap। यानी कि आप इसको देखिए, यहाँ पर ये क्या है, इसका कॉमन वर्टेक्स है, इस AB और BC का कॉमन वर्टेक्स B है, तो ये जो एंगल बना रहा है ये क्या है, इसका एडजेसेंट एंगल है। और ये क्या है, इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ओवरलैप, यानी कि इसको आपस से कट यानी काट नहीं रहा है। Adjacent sides, two sides of a polygon are said to be adjacent if they have a common vertex। adjacent side, ये AB और ये BC adjacent side है क्योंकि इनका क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। वर्टेक्स मतलब शिखर यानी कि कोई बिंदु, ठीक है। ये पॉइंट जो B है ये इसका क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। और एडजेसेंट साइड जो कि A और B और C जो मिल रही है वही आपकी क्या है, इसमें एडजेसेंट साइड। डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन, ए लाइन सेगमेंट joining any two consecutive verticals of non-consecutive verticals is a polygon, it's called its diagonal। डायगोनल क्या होता है, आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है ना। ए लाइन सेगमेंट joining any two non-consecutive verticals, यानी कि A और B ये दोनों क्या हैं, कंसेक्यूटिव है, लेकिन ये वाला और ये वाला नॉन कंसेक्यूटिव है। तो जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डायगोनल क्रिएट हो जाएगा। यानी पॉइंट ABCD, जब हम C को B से मिलाएंगे जो कि कंसेक्यूटिव नहीं है तो ये डायगोनल इसका हो जाएगा, और A पॉइंट से D पॉइंट मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका डायगोनल हो जाएगा। Equiangular polygon, a polygon that has all equal anterior angle is known as equiangular polygon। यानी कि अब आप ये देख लीजिए कि ये इसके सारे इंटीरियर एंगल जो है, इंटीरियर एंगल जो है 90 डिग्री है, तो ये क्या है, इक्वेंगुलर पॉलीगन है। क्या है, इक्वेंगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसके सारे एंगल्स, इंटीरियर एंगल सभी इक्वल है। Parallel lines, two or more lines that are always equidistant from one another, however far they are extended, are known as parallel lines। Parallel lines क्या होती हैं, ये जो लाइन इस साइड को और इस साइड को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, और ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम आगे कंसेक्यूटिव करते हैं तो ये कभी किसी को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यही आपकी पैरेलल लाइंस हैं। इक्वलेटरल पॉलीगन, ए पॉलीगन दैट हैज साइड्स आर इक्वल लेंथ इज नॉन एज इक्वलेटरल पॉलीगन। आपने इक्वेंगुलर पढ़ा जहाँ पर सारे एंगल बराबर हों, लेकिन इक्वलेटरल का मतलब ये हुआ कि सारी लेंथ क्या हो, बिल्कुल क्लियर हो, मतलब बिल्कुल इक्वल हो लेंथ में होगी तो इक्वलेटरल, और एंगल में हुई तो इक्वेंगुलर। क्लियर। 3.3 curve and its types। Curve, a set of points which form or can be joined by continuous line or on a graph or other surface। Open curve, a curve that
does not cross at any point is known as open curve. In other words, begin and end points do not join together. The given figure represent the open curve. देखिए हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको राउंड राउंड करके यहाँ पर इसको फिनिश कर रहे हैं. ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को मीट नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही ये मिल रहे हैं, तो ये क्या है, ओपन कर्व है. ये यहाँ का स्टार्ट पॉइंट है और यहाँ पर एंड हो रहा है, तो ये भी क्या है, ओपन कर्व है. स्टार्ट पॉइंट यहाँ से फिनिश हो रहा है, तो ये क्या है, ओपन कर्व. क्लोज्ड कर्व, जब स्टार्टिंग पॉइंट से आप एंड पॉइंट को मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज कर्व. जैसे कि इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं ख़त्म किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व हो जाएगा. सिंपल क्लोज्ड कर्व, अ क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इट कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व. द गिवन फिगर्स रिप्रेजेंट द सिंपल क्लोज्ड कर्व. यानी कि ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं. या क्लोज कर्व में देखिए ये सब अपने पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं ना, क्रॉस कर रहे हैं. लेकिन सिंपल क्लोज कर्व में ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं. जैसे ये लाइन सेगमेंट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, लेकिन उसी पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है. ये आपस में कोई डिज़ाइन में अपनी जो शेप है उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही क्रॉस कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है. Types of polygon. Convex polygon. If each angle of polygon is less than 180 degree, then it is known as convex polygon. The given figures represent the convex polygon. यानी कि जो भी इसका ईच एंगल है वो 180 डिग्री से छोटा है, तो वो कौन सा एंगल है, वो कौन सा पॉलीगन है, कन्वेक्स पॉलीगन. यानी कि जो उसका ईच एंगल है वो 180 डिग्री से लेस देन होना चाहिए, तो वो कौन सा है, कन्वेक्स पॉलीगन. कॉन्केव पॉलीगन, इट इफ एट लीस्ट वन एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज मोर देन 180 डिग्री. यानी कि कोई भी एक एंगल, जैसे कि एंगल बी की वैल्यू 180 से मैक्सिमम है, ये अप्रॉक्सीमेट 270 दिख रहा है मुझे, तो है ना, ये 270 है, तो इसीलिए ये 180 डिग्री से ज़्यादा है. तो इसमें किसी पॉलीगन में अगर कोई एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है तो वो कौन सा पॉलीगन होगा, कनकेव पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन, ए पॉलीगन विच हैज़ ऑल इट्स साइड्स एंड इक्वल्स एंगल्स इक्वल is known as regular polygon. Thus a regular polygon is both triangular, angular and equiangular and equilateral. यानी कि एंगल्स भी बराबर हों और साइड्स भी बराबर हों, तो वो कौन सा पॉलीगन कहलाता है, रेगुलर पॉलीगन. ये आपका स्क्वायर है, परफेक्ट. आप जानते हैं स्क्वायर के अंदर इसकी जो चारों साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, आर इक्वल एंड 4 एंगल्स आर इक्वल, तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको, इक्वेंगुलर एंड इक्विलेटरल. यानी कि इसके एंगल्स भी इक्वल हों और इसकी जो साइड्स हैं वो भी लेंथ में इक्वल हों, तो वो क्या कहलाता है, रेगुलर पॉलीगन. A square has sides of equal length and angles of equal measure, so square is a regular polygon. Similarly, equilateral triangle and above given पेंटागन आर रेगुलर पॉलीगन. यानी कि आपका ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये भी और ये पॉलीगन भी क्या है, रेगुलर पॉलीगन. पेंटागन भी क्या है, रेगुलर पॉलीगन है. इर्रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन विच इज़ नॉट अ रेगुलर पॉलीगन इज कॉल्ड एन इर्रेगुलर पॉलीगन. यानी कि कोई अगर रेगुलर नहीं है तो वो इर्रेगुलर है. यानी कि जिसकी साइड्स और एंगल अलग अलग हों तो वो क्या है, इरेगुलर पॉलीगन. ए रेक्टेंगल हैज़ ऑल इक्वल एंगल्स मेजर ऑफ 90 डिग्री बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. यानी कि एक आपने रेक्टेंगल देखा है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, यानी कि आमने सामने की जो साइड्स होती है ना वो क्लियर, वो बिल्कुल सेम होती है, लेकिन चारों साइड जो हैं, जिसकी 4 साइड हैं, वो इक्वल नहीं होती, और उसके एंगल्स क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन उसकी साइड्स लेंथ में डिफरेंट होती है, इसलिए वो क्या है, इरेगुलर पॉलीगन है. बाकी एग्जांपल्स आपको रीड करने हैं, ठीक है. ये जो सम है, एंगल सम प्रॉपर्टी
सम ऑफ द इंटीरियर्स एंगल ऑफ प्रॉपर्टी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आपको इस चैप्टर का ये थ्योरी और इंट्रोडक्शन को रीड करना है और इसको एक बार और लर्न करना है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और आप सभी अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।